गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे शेयर्स। सो शेयर्स क्या होते हैं? मीनिंग ऑफ शेयर्स: टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड into a unit of small denominations. Each unit is called share. For example, if the total capital of the company is 10 lakh divided into 1 lakh units of 10 each unit of 10 will be called a shares of rupees 10 each. Thus is the above case, company has 1 lakh shares of 10 each. Share must be numbered so that they have be identified. देखो, द मेन थिंग इज दैट कि शेयर्स क्या कहलाते हैं। शेयर्स का मतलब ये है कि जो एक स्मॉल यूनिट्स होती है डिनोमिनेशन की, मीन्स जो आपकी पूरी टोटल कैपिटल है उसे आप जो पैसों में डिवाइड कर देते हैं उसको आप शेयर्स कहलाते हैं। ठीक। नेचर ऑफ शेयर्स: शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी. शेयर्स of a company are treated as a good under the Sales of Goods Act 1930. They can be bought, sold and hypothecated and be equated. मीन्स नेचर क्या है शेयर्स का कि वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, आप उन्हें ट्रांसफर कर सकते हैं आपकी, अगर आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये मेंशन किया गया, और अकॉर्डिंग टू द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के ये एक गुड्स भी है। ठीक है। क्लासेस काइंड ऑफ टाइप्स ऑफ शेयर्स कौन कौन से हैं? Under Section 43 Companies Act 2013, a company may issue two types of shares. First, preference shares and second one is equity shares. Preference shares का नाम से ही पता चल रहा है कि उन्हें प्रेफरेंस दी जाती है, और equity shares में ओनरशिप। Preference shares क्या होते हैं? Preference shares are those which carry the following two rights. जिनके पास दो rights होते हैं. First, they have a right to receive dividend at a fixed rate before any dividend is paid on the equity share. When the company is wound up, they have a right to return of the capital before the equity shares. देखो, इनके पास, इनका नाम क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स का मेन काम क्या होता है कि उनको है ना, कोई भी डिविडेंड बढ़ रहा है, डिविडेंड मीन्स लाभांश, जो भी डिविडेंड बढ़ रहा है वो इक्विटी शेयर्स से पहले मिलेगा, और अगर कभी कंपनी बंद होती है तो उनका सारा कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल से पहले मिलेगा। In additions to the above, preference shares may carry some more rights, such as the right to participate in excess profit when a specific dividend has been paid on the equity shares, or the right to receive a premium at the time of redemption. देखो, इनके पास उसके अलावा भी कुछ और राइट्स हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा डिविडेंड मिलना, और इनके रिडम्पशन के टाइम पे, यानी कि जब उन्हें वापस करने की बारी आए तो उस पर प्रीमियम मिले। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स: क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. Cumulative preference shares are those preference shares the holder of which are entitled to recover the area of preference dividend before any dividend is paid on equity shares. This means that if any year the profit of the company are insufficient to pay the dividend on these shares, the dividend keeps on accumulating until it is fully paid. For example, if the dividend has not been paid for the year ended 31st March 2016 and 17 on 8% cumulative preference shares, and company wants to distribute dividend on equity shares for the year ended 31st March 2018. A total of 24% dividend for the year ended 31st March 2016, 17, 18 will have to be first paid to preference shares before the payment of any dividend to the equity shares. The area of the dividend on the shares are shown in the balance sheet as a commitment under contingent liabilities and commitments. देखो, एक क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का मीन्स क्या होता है कि हर प्रेफरेंस शेयर्स के आगे ना एक परसेंटेज मेंशन होती है कि वो कितने परसेंट का शेयर है, उसको उतने परसेंट का डिविडेंड मिलता है। अगर इन केस किसी ईयर में कंपनी इतने प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाती कि वो डिविडेंड पे कर पाए, तो उसका डिविडेंड उसे नेक्स्ट ईयर्स के प्रॉफिट्स में मिलता जाएगा। मतलब वो उसका डिविडेंड ये नहीं होगा कि इस साल नहीं मिला तो नहीं मिलेगा, हर साल उसका जुड़ता जाएगा, और जब भी प्रॉफिट होगा कंपनी में वो उसका डिविडेंड पे ऑफ करेगी। ठीक। नेक्स्ट, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर. द होल्डर ऑफ सच शेयर्स गेट अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ ईच ईयर. If no dividend is declared in any year due to any reason, such shareholder get nothing, nor can they claim unpaid dividend of any year in the subsequent year. Means नॉन क्यूमुलेटिव में नेक्स्ट ईयर में मिल जाता था, और नॉन क्यूमुलेटिव में ये उनको जिस साल प्रॉफिट होगा उसी साल मिलेगा, अगर नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट नहीं होता है तो उनको डिविडेंड नहीं मिलेगा। Participating preference shares, such share is addition to the fixed preference shares dividend, carry a right to participate in the surplus profit if any after dividend is a stipulated rate has been paid to equity shareholders. Similarly, in the event of winding up, if after any paying back
both the preference share and equity shares, there are still some surplus left. Such shareholder are entitled to receive the predetermined proportion of surplus. Means ये क्या कह रहे हैं कि participating preference shares क्या कहते हैं, अगर आपके पास प्रॉफिट है, आपके डिविडेंड पे ऑफ होने के बाद भी कंपनी के पास सरप्लस बचता है, तो वो सरप्लस इन डिविडेंड शेयर्स और इक्विटी शेयर्स पे बांट दिया जाएगा. नॉन पार्टिसिपेटिंग में ये होगा, क्या होगा, सच शेयर्स गेट ओनली अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड एवरी ईयर एंड do not carry a right to participate in the surplus profit or in any surplus on winding up unless expressly provided. The preference shares are usually non participating. मीन्स देखो ये क्या कह रहे हैं कि ये ना नॉन पार्टिसिपेटिंग शेयर्स तो क्या होगा कि अगर है ना इनका मतलब सिर्फ अपने डिविडेंड से होना चाहिए, एक्सेस सरप्लस से कोई इनको मिलेगा नहीं, चाहे कंपनी वाइंड अप हो या ना हो. और अधिकतर जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो नॉन पार्टिसिपेटिंग ही इशू होते हैं. रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल का मीन्स होता है कि आप आफ्टर सर्टेन टाइम, यानी कि एक टाइम पीरियड दिया गया होगा, उस टाइम पीरियड के बाद आप उस शेयर्स को कंपनी को रिटर्न कर दोगे. सच शेयर्स आर दोज विच विल बी repaid by the company within a stipulated period in accordance with the terms of issue and the fulfillment of certain condition laid down in section 55 of the Companies Act 2013. मीन्स ये क्या कह रहे हैं कि एक सर्टेन टाइम फ्रेम के बाद ये रीपेड हो जाते हैं, जो भी कंडीशंस इसमें मेंशन की गई होती हैं ऑन द टाइम ऑफ इशूइंग, वो कंडीशन पूरी करके इस प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर देते हैं. इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स are those the capital of which cannot be refunded before winding up. According to section 55 of Companies Act 2013, no company limited by shares shall issue any preference shares which is irredeemable or redeemable after the expiry of 20 years from the date of its issue. मीन्स देखो हर कंपनी के पास irredeemable होते हैं, आफ्टर 20 ईयर्स के टाइम के बाद ये irredeemable होते हैं. ये सब सिर्फ होते हैं जब वो कंपनी वाइंड अप होती है. कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, holders of these shares have a right to get their preference shares converted into equity shares by their proportion according to the terms of issue. मीन्स ये अपने शेयर्स को, प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. नॉन कन्वर्टेबल, ये शेयर्स कन्वर्ट नहीं हो सकते, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स में इशू गए गए हैं उन्हें ही प्रेफरेंस शेयर्स ही रहेंगे. नेक्स्ट, इक्विटी शेयर्स. इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर पेड dividend only when the profit are left after the preference shares holders have been paid fixed rate of dividend. In other words, there will be no fixed rate of dividend on the equity shares. In a particular year, there are no profit or insufficient profit. The equity share will receive nothing. If the company earns more profit, they get a higher rate of dividend as regard return of capital. Equity share capital is returned only when preference share capital is returned is full. Equity shareholder have voting right and control the affair of the company. देखो इक्विटी शेयर्स के पास पहला राइट क्या होता है, उनके पास कंपनी में ओनरशिप होती है. सेकंड, वोटिंग राइट होता है. थर्ड वन इज कि कंपनी के इक्विटी शेयर्स को है ना प्रेफरेंस डिविडेंड तभी मिलेगा जब प्रेफरेंस शेयर्स को बच चुका होगा और कंपनी के पास एक्सेस में डिविडेंड प्रॉफिट बचा होगा. डिफरेंस बिटवीन क्या है इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के बीच में? रेट ऑफ डिविडेंड. प्रेफरेंस शेयर्स का रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड है और इक्विटी शेयर्स का नॉट फिक्स्ड है. ईयर टू ईयर ये चेंज भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल ऑफ द प्रॉफिट. एरियर ऑफ डिविडेंड, इफ द डिविडेंड इज नॉट पेड ऑन दी शेयर्स एनी ईयर, एरियर ऑफ डिविडेंड में एक्यूमुलेटेड. अगर ऐसा कोई डिविडेंड नहीं मिलता है तो उनका एक्यूमुलेटेड मतलब कैलकुलेट किया जाएगा और मेंशन किया जाएगा. और इनके में ऐसा कुछ भी कंपल्सरी नहीं है कि इनको डिविडेंड मिले ही मिले. प्रेफरेंशियल राइट ऑफ टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड. दे हैव अ राइट टू रिसीव अ डिविडेंड बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर. इनके पास ये राइट है कि इक्विटी शेयर्स को मिलने से पहले डिविडेंड इनको मिले. पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स इज मेड आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर. इनको डिविडेंड हमेशा प्रेफरेंस शेयर्स के पेमेंट के बाद ही मिलता है. नेक्स्ट, प्रेफरेंशियल राइट as to the payment of capital. They have a right to return of capital in the case of winding up before any capital is returned to the equity shareholder. Equity share capital is paid only when preference share capital is paid out fully. Means इनको कैपिटल इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले पे ऑफ होगी कंपनी के वाइंड अप के टाइम पे और इक्विटी शेयर्स को आफ्टर प्रेफरेंस शेयर. वोटिंग राइट शेयर प्रेफरेंस शेयर्स के पास नहीं होता. इक्विटी शेयर एंजॉइंग वोटिंग राइट्स. Next, right to participating in management. They do not have the right to participate in management of the company. Preference shares के पास ऐसा कोई राइट नहीं होता कि वो मैनेजमेंट के किसी भी काम में बोलें. They have a full right to participate in the management of the company. इक्विटी शेयर्स के पास ये राइट होता है कि वो कंपनी के मैनेजमेंट में बात करें.
ठीक है। आज हमने पढ़ा प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स, कल हम पढ़ेंगे शेयर कैपिटल और इसके न्यूमेरिकल। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।